صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دفعہ عقیدت و محبت کے ساتھ مزید نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ عزیزان محترم، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں چند اشعار بطور نذرانہ پیش ہے، سماعت فرمائیں۔ حشر میں کھول دیا باب کرم آقا نے، حشر میں کھول دیا باب کرم آقا نے، دور سب دل سے کیا رنج و علم آقا نے، دور سب دل سے کیا رنج و علم آقا نے۔ اور ابر بارہ کی طرح برسی ہے رحمت سب پر۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی بھی ہو، جو بھی اس مخلوق میں آیا ہے، سرکار اس کے لیے رحمت ہے۔ شاعر کہتا ہے ابر بارہ کی طرح برسی ہے رحمت سب پر، کون ہے جس پہ کیا ہو نہ کرم آقا نے، کون ہے جس پہ کیا ہو نہ کرم آقا نے۔ اور دیکھیں ایک گنہگار اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، میرے اعمال تو لے جاتے جہنم لیکن، میرے اعمال تو لے جاتے جہنم لیکن، فضل سے اپنے ہی بخشی ہے ارم آقا نے، فضل سے اپنے ہی بخشی ہے ارم آقا نے۔ میرے عزیزوں یقین مانو، مصطفیٰ جان رحمت کا اگر فضل نہ ہو، کرم نہ ہو، تو کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی جنتی ہے، کوئی جنت میں جا سکتا ہے تو وہ فقط مصطفیٰ کے کرم سے جا سکتا ہے، مصطفیٰ کے فضل سے جا سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے میرے اعمال تو لے جاتے جہنم لیکن، فضل سے اپنے ہی بخشی ہے ارم آقا نے، فضل سے اپنے ہی بخشی ہے ارم آقا نے۔ اور آج جو ماں بہنیں کبھی زندہ درگور کی جاتی تھیں، جنہیں عزت کا تاج آقا کریم نے دیا ہے، ان کے بارے میں شاعر کیا کہتا ہے، بنت حوا کو بھلا کون یہ عظمت دیتا، بے شک بنت حوا کو بھلا کون یہ عظمت دیتا۔ عزیزوں اگر شعر میں غور کریں تو میں ایک شعر میں ایک عقیدہ پیش کر رہا ہوں۔ آج سرکار کے بارے میں نہ جانے کیا باتیں کہی جاتی ہیں، میں اختلاف کا قائل نہیں ہوں، لیکن جو گرد ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں سرکار مختار نہ ہوتے تو وہ بیٹیاں جو کبھی زندہ درگور ہو رہی ہوتی ان کو یہ مقام نہ ملتا جو شاعر اپنی شاعری میں کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے، بنت حوا کو بھلا کون یہ عظمت دیتا، رکھ دیا فردوس بری زیر قدم آقا نے، رکھ دیا فردوس بری زیر قدم آقا نے۔ آج ماؤں کے قدموں میں اگر جنت ہے تو یہ کس کا صدقہ ہے، کس کی دین ہے، کس کا کرم ہے؟ یہ سراپا رحمت للعالمین کا کرم ہے۔ رکھ دیا باغ جنا، رکھ دیا فردوس بری زیر قدم آقا نے، اور کعبۃ اللہ بسد ناز جھکا سجدے میں۔ آقا کی ولادت ہوئی، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی، کعبے کی دیواریں آمنہ کے گھر کی طرف جھک گئیں۔ شاعر اس کی منظر کشی کرتا ہے، کعبۃ اللہ بسد ناز جھکا سجدے میں، رکھا اس شان سے دنیا میں قدم آقا نے، رکھا اس شان سے دنیا میں قدم آقا نے۔ اور شاعر کیا کہتا ہے، یہ مجھ ناچیز کا ہی کلام ہے، دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیش داور جب میدان محشر میں ہمارے عیبوں سے پردہ اٹھایا جائے گا، ہمارے نامہ اعمال کھلیں گے، تو وہاں پہ بھی آقا کی رحمت جوش مارتے ہوئے اپنے غلاموں کے عیبوں کو چھپاتے ہوئے نظر آئے گی۔ شاعر کہتا ہے پیش داور میرے عیبوں کو چھپا کر ساقی، پیش داور میرے عیبوں کو چھپا کر ساقی، بزم محشر میں بھی رکھا ہے بھرم آقا نے، بزم محشر میں بھی رکھا ہے بھرم آقا نے۔ پیش داور میرے عیبوں کو چھپا کر ساقی، بزم محشر میں بھی رکھا ہے بھرم آقا نے۔ حشر میں کھول دیا باب کرم آقا نے، دور سب دل سے کیا رنج و علم آقا نے، دور سب دل سے کیا رنج و علم آقا نے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اب میں موضوع کی طرف آتا ہوں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو
बताओ मुसलमान भी हो और ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो दिमाग मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, दिलो दिमाग मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या शैतान एक खुदा को नहीं मानता था? क्या इब्लीस एक खुदा का इकरार नहीं करता था? अरे इब्लीस से बड़ा मुवाहिद कौन हो सकता है कि जब अल्लाह ने आदम को सजदा करने के लिए कहा तो उसने कहा मैं नहीं करता। उससे बड़ा मुवाहिद कौन हो सकता है? उससे ज्यादा वहदत परस्त कौन हो सकता है? लेकिन अल्लामा इकबाल कह रहे हैं ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो दिमाग मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम कलमे की रट लगाते रहो, तुम्हारा दिल मुसलमान नहीं, तुम्हारा बातिन मुसलमान नहीं, तुम्हारा कल्ब मुसलमान नहीं, तो ज़बान से ला इलाहा की तस्बीह पढ़ना तुम्हें कोई फायदा नहीं देगा। अज़ीज़ान मोहतरम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने 2 मुख्तलिफ मकाम की आयत करीमा तिलावत की है और इंशाअल्लाह इस मुख्तसर वक्त में मैं दोनों का रब्त जोड़ने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुक़द्दस कलाम में हम बंदों को क्या तालीम दी है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम एक बुजुर्ग शख्सियत से मंसूब मजलिस में हाजिर हैं। उस शख्सियत का नाम क्या है? हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जिसे लोग गौसे आज़म के नाम से जानते हैं। उस शख्सियत के नाम से ये महफिल मंसूब है, ये मजलिस मंसूब है। आज हम उनकी याद मनाने के लिए, उनका जिक्र करने के लिए इस मजलिस में बैठे हैं। मेरे अजीज़ों, मेरा ये मानना है और हकीकत भी यही है, किसी की याद मनाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि उसके मिशन पर अमल किया जाए, उसकी तालीम पर अमल किया जाए। अगर हम उसके मिशन पर अमल कर रहे हैं, उसकी तालीम पर अमल कर रहे हैं, तो पूरी मजलिस में अगरचे उसका नाम एक दफा भी ना लिया जाए, उससे बेहतर कोई मजलिस नहीं हो सकती जिसमें उनके मिशन की बात हो। आज हम सिर्फ नाम के कायल रह गए हैं कि तकरीर हो तो फला का नाम आना चाहिए, फला का नाम आना चाहिए। मेरे अजीजों, फला के नाम आने से कमाल नहीं पैदा होता, फला की तालीम पर अमल करने से कमाल पैदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मेरे अजीजों, इन बातों पर जो अमल कर ले हकीकी एतबार से वो बंदा मुसलमान बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। आज हम न जाने किन चीज़ों में उलझे पड़े हैं, न जाने किन बातों में फंसे हुए हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी तो यहाँ हमें तज़किया में बता रहा। अल्लाह फरमा रहा है, कद अफलहा मन तज़क्का, वो शख्स कामयाब है, वो लोग कामयाब हैं, फलाह पाने वाले हैं, बहबूद पाने वाले हैं। कौन? मन तज़क्का, जिसने अपने कल्ब की सफाई कर ली। मेरे अजीजों, हम दिन में रोजाना एक दफा जरूर नहाते हैं, इसलिए कि हमारा जिस्म बिल्कुल साफ और सुथरा रहे। कपड़े में कोई दाग लग जाए तो उस कपड़े को हम अपने जिस्म पर पसंद नहीं करते, उतार कर फौरन साफ कपड़ा पहन लिया करते हैं। हमें अपने लिबास की तो फिक्र है, हमें अपने जिस्म की तो फिक्र है, लेकिन जिस चीज को अल्लाह ने सुथरा करने के लिए कहा है, हमें उसकी जर्रा बराबर भी फिक्र। हमारा कल्ब इस कदर मैला हो चुका है कि हमारे कल्ब में कभी कोई खैर की बात आती ही नहीं, कोई अच्छी बात आती ही नहीं है। ये इस बात की दलालत है, ये इस बात की निशानी है कि हमारा कल्ब बिल्कुल सियाह और बिल्कुल काला हो चुका है, जिसे साफ करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अल्लामा इकबाल ने कहा, यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, क्या समझा आपने इस फलसफे से? क्या अल्लामा इकबाल किसी जात को लेकर तंज कर रहे हैं? क्या किसी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं? नहीं, वो बताना ये चाह रहे हैं कि सर पे टोपी रखकर तो तुम मुसलमान बन गए, चेहरे पर दाढ़ी सजाकर तुम मुसलमान बन गए, 5 वक्ता नमाज पढ़कर तुम मुसलमान बन गए, लेकिन हकीकी एतबार से जिसे मुसलमान कहना था वो तुम नहीं बन सके। अजीजान मोहतरम, आज हम हकीकी एतबार से मुसलमान नहीं हैं, हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, वरना हकीकी एतबार से कौन मुसलमान है?
حقیقی اعتبار سے مسلمان وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا ہے. اور ان کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا آج کون ہے؟ وہ یہی اولیاء کاملین ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھا کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھا کرو تو جس طریقے سے یہ مجھے یاد کرتے ہیں ان کی صحبت کا اثر یہ ہوگا کہ تم بھی میرا ذکر کرنے والے بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ لوگ جس نے اپنا تزکیہ کیا ہے. میرے عزیزوں تزکیہ یہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کا نام ہے؟ تو تزکیہ وہ ایسی نعمت ہے، وہ ایسا عمل ہے کہ جب تک بندے کے اندر یہ چیز نہ ہو، سجدے کرتے کرتے ہماری پیشانیاں بھی سیاہ ہو جائیں تو وہ سجدے ہمارے چہروں پر مار دی جائے، نماز پڑھتے پڑھتے ہمارے جسموں پر گاچھ پڑ جائے وہ نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے گی. تزکیہ سب سے پہلے ضروری ہے، اور تزکیہ کہتے ہیں اپنے نفس کو مار کر اپنے قلب کو زندہ و جاوید کرنے کا نام. آج بزرگان دین کا ہم گن کیوں گاتے ہیں؟ اس وجہ سے گاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو نمازی تو بناتے ہی ہیں لیکن اس سے پہلے ایک مسلمان بناتے ہیں، کیونکہ جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کی عبادت کمال پر ہوا کرتی ہے. اسی لیے صوفیاء کرام نے فرمایا کہ تصوف جس فن سے جس پر عمل کرنے والے کو صوفی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تصوف یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو نماز پڑھنا سکھائے گا. نماز پڑھانے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ یہ شریعت سکھاتی ہے. تصوف نام اس چیز کا ہے، عبادت میں کمال کیسے پیدا ہو تصوف یہ سکھا. اور یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جبریل امین تشریف لائے، آپ کا حلیہ چینج تھا، صحابہ اکرام پہچان نہ سکے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو زانو ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبریل بھی دو زانو ہو کر بالکل گھٹنے سے گھٹنا سٹا کر بیٹھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوال کیا. کبھی موقع لگا تو میں ان تین سوالوں کو ذکر کروں گا. سب سے آخری سوال جو میرا آج کا موضوع ہے میں اس کی طرف چلنا چاہتا ہوں. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا یا رسول اللہ مل احسان، یہ احسان کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم رب کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. کہیے سبحان اللہ. آقا کریم نے کیا کہا کہ تم رب کی عبادت اس طریقے سے کر رہے ہو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ تصور تمہارے اندر ہونا چاہیے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. عزیزان محترم، جب بندہ تصوف پر عمل کرتا ہے، کسی صوفی کی صحبت میں رہتا ہے، کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جا کر ان سے اکتساب فیض کرتا ہے، تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ نماز میں کس طریقے سے خدا دیکھا جا سکتا ہے، نماز میں کس طریقے سے خدا کو پایا جا سکتا ہے، اور نماز کے ذریعے سے کس طرح سے خدا کو حاصل کیا جا سکتا ہے. آج ہم نے لوگوں کو نماز پڑھنا سکھا دیا حضرت، روزہ رکھنا سکھا دیا، زکوٰۃ دینا سکھا دیا، حج کرنا سکھا دیا، لیکن جو اس کا مغز ہے اس سے خالی ہے، جو اس کی اصل ہے اس سے خالی ہے، جو روح ہے اس سے خالی ہے. میرے عزیزوں، بغیر روح کا کوئی جسم معنی رکھتا ہے؟ جسم سے روح نکل جائے جسم کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. چند گھنٹے کے بعد اس سے بدبو آنے لگتی ہے. جسم کی خوبصورتی ہی اسی وقت ہے جب تک اس میں روح موجود رہتی ہے، اور عمل کی خوبصورتی اسی وقت ہے جب تک اس میں روح موجود ہو، اور روح کا نام ہی تزکیہ ہے. اگر ہمارے اندر تزکیہ نہیں ہے، قلب کی صفائی نہیں ہے، ہم نماز پڑھیں گے تو خیال یہ ہوگا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر نمازی سمجھیں، ہم زکوٰۃ دیں گے تو خیال یہ ہوگا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر یہ سمجھے کہ میں بہت زیادہ سخاوت کرنے والا ہوں. حج کرنے جائیں گے تو یہ نیت ہوگی کہ لوگ مجھے دیکھ کر حاجی کہیں، میرے اوپر رشک کریں. کوئی بھی عمل خیر ہوگا لیکن نفس کا غلبہ ہوگا، نیت غلط طرف ڈال دے گا. لیکن جب بندہ کسی بزرگ کی صحبت میں رہ کر اپنے نفس کو مار چکا ہوگا، وہ نماز پڑھے گا اللہ کے لیے پڑھے گا، روزہ رکھے گا تو اللہ کے لیے رکھے گا، زکوٰۃ دے گا تو اللہ کے لیے دے گا، حج کرے گا تو اللہ کے لیے کرے گا. کوئی بھی عمل خیر کرے گا اس کی غرض مخلوق سے نہیں ہوگی بلکہ خالق سے ہوا. میرے عزیزوں،
मैं बारहा जो लोग मेरा खिताब इस बुधई मस्जिद में सुनते हैं, मैं इस बात की तरफ तवज्जो देता हूं। आज क्या वजह है? हम नमाजी हैं लेकिन झूठ बोल रहे हैं, हम नमाजी हैं लेकिन चोरी कर रहे हैं, हम नमाजी हैं लेकिन कारोबार में धोखाधड़ी कर रहे हैं, हम नमाजी हैं लेकिन गीबत कर रहे हैं, हम नमाजी हैं लेकिन सूदी कारोबार कर रहे हैं, हम नमाजी हैं हरामकारी कर रहे हैं, हम नमाजी हैं हमारी आंखों से बेहयाई हो रही है। आखिर क्यों? उसकी वजह यही है कि हमें नमाजी तो बना दिया गया, हमें सही मुसलमान नहीं बनाया। मेरे अजीजों, जिस दिन हम सही मुसलमान बन जाएंगे तो जिस तरह से दुनिया उन 313 से खौफ खाया करती थी, आज भी वो दुनिया हमसे लर्जा बर अंदाम होते हुए नजर आए। लेकिन हमने मुसलमान बनना छोड़ दिया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कद अफलहा मन तज़क्का, कि कामयाब वही शख्स है जिसने अपने नफ्स की इस्लाह कर ली, जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया। मेरे अजीजों, नमाज यकीनन बहुत बड़ी इबादत है, नमाज यकीनन बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन आज मैं आपको एक फलसफा समझाते हुए चल रहा हूं। नमाज पढ़ने के लिए 6 शराइत हैं, बाज ने 7 शराइत का जिक्र किया है। जिन्होंने तकबीर तहरीमा यानी नमाज शुरू करने के लिए जो तकबीर कही जाती है, शराइत में जिन्होंने उसको शुमार किया वो कहते हैं शराइत 7 हैं, और जिन्होंने उसको नहीं शुमार किया वो कहते हैं नमाज शुरू करने के लिए पहले 6 शर्त का होना जरूरी है। अगर ये 6 शर्त नहीं होंगी तो नमाज दुरुस्त नहीं हो सकती। वो क्या है शर्तें? नमाजी का पाक होना, जगह का पाक होना, जिस वक्त की नमाज पढ़ रहे उस वक्त का होना, किबला की तरफ चेहरे का होना। मेरे अजीजों, ये नमाज के शराइत में से हैं। अगर हम जोहर की नमाज असर के वक्त में पढ़ना चाहें तो नमाज नहीं होगी, नापाकी के हालत में नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज नहीं होगी। किबला के बजाय हिंदुस्तान में पश्चिम की तरफ किबला है, अगर पूरब की तरफ कोई मुंह करके नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज नहीं होगी। लेकिन सूफिया इकराम क्या फरमाते हैं? आओ मेरे अजीजों, देखो इन अल्लाह वालों की शान, इन अल्लाह वालों का मकाम। सूफिया इकराम फरमाते हैं कि यकीनन जो शरीयत ने 6 या 7 शराइत का जिक्र किया वो हक है, उनके बगैर नमाज नहीं हो सकती है। लेकिन एक शर्त और है, एक शर्त और है, अगर उसकी रियायत ना की गई तो इन 6 शर्तों की रियायत के बावजूद भी नमाज नहीं होगी। मेरे अजीजों, सूफिया क्या फरमाते हैं कि अगर 6 शर्तों के अलावा एक शर्त और है, अगर उस शर्त की रियायत ना की गई तो इन 6 शर्तों के एहतमाम के बावजूद भी नमाज पढ़ने वाले की नमाज नहीं होगी। पूछने वालों ने पूछा कि हुजूर वो कौन सी शर्त है? आपने फरमाते हैं अपने कल्ब को साफ करना, क्योंकि तुम्हारा जिस्म पाक हो, लिबास पाक हो, जगह भी पाक हो, वक्त भी हो, चेहरा भी तुम्हारा किबले की तरफ हो, लेकिन दिल में किसी की बुराई लेकर नमाज पढ़ोगे वो नमाज तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नमाज पढ़ोगे वो नमाज तुम्हारे ऊपर फेंक दी जाएगी। किसी दुनियावी मकसद के लिए नमाज पढ़ोगे वो नमाज तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाएगी। इसलिए सूफिया फरमाते हैं कि इन तमाम शराइत पर सबसे पहली शर्त यह है कि अपने कल्ब को गैर से साफ करके अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करना। जब तक इस नियत का दखल नहीं होगा, तमाम नियत के बावजूद भी आपकी नमाज नामुकम्मल रहेगी। इसलिए बुजुर्गाने दीन ने सबसे पहले जिस चीज की तरफ काम किया वो क्या है? तस्किया है, कल्ब की सफाई की तरफ काम किया है। मेरे अजीजों, अहदे रिसालत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक इरशाद फरमाई, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लदीना यलूनहुम सुम्मल्लदीना यलूनहुम सुम्मा यफ्शुल कदिब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बेहतर जमाना मेरा है, सबसे बेहतर जमाना मेरा है, फिर ताबईन का है, फिर तबे ताबईन का है, उसके बाद झूठ फैल जाएगा और बुराइयां फैलनी शुरू हो जाएंगी। अजीजाने मोहतरम, आज जब हम बुजुर्गाने दीन की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हदीस में कहां मौजूद है, सहाबा इकराम ने कहां यह अमल किया। मेरे अजीजों, मैं समझाना चाहता हूं कि जिस दौर में सरापा साहिब शरीयत मौजूद हो उस दौर में किसी को किसी और के पास जाने की क्या हाजत हो सकती है। मेरे अजीजों,
सूरज जिसके पास खुद मौजूद हो वो किसी दूसरे चिराग से रोशनी लेने क्यों जाएगा? तो मेरे अजीजों, जब सरकार मौजूद थे, सहाबा को सारी चीजें सरकार की जात से मिल रही थी, इसलिए किसी के पास नहीं गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन उसके बाद भी एक बात ना कह दूं, बात रिपीट हो जाएगी, लेकिन चूंकि बात आ गई है तो मैं कह देना चाहता हूं, सरकार अलैहिस्सलात व तस्लीम की जात है, मुस्तजाब है। अंबिया तो यूं ही मुस्तजाब होते हैं। मुस्तजाब का मतलब क्या है? जो भी बात उनके मुंह से निकलती है रब्बे करीम उसे पूरा कर दिया करता है। वो जो भी दुआएं करते हैं अल्लाह उसे कबूल कर लेता है। क्या आका करीम को किसी से दुआ कराने की हाजत थी? बोले, अपने ईमान का सबूत दें। क्या आका करीम को किसी से दुआ कराने की हाजत थी? नहीं थी। आका करीम पैदा हुए तब भी रब्बे हबली उम्मती की सदा थी। आखिर वक्त दुनिया से तशरीफ ले जा रहे तब भी रब्बे हबली उम्मती की सदा थी। पूरी जिंदगी आपने जो 63 साल गुजारी उम्मत की फिक्र में गुजार दी, और अल्लाह क्या उस फिक्र का कोई सिला न देगा? आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे अजीजों, पूरी जिंदगी उम्मत की फिक्र में निकाल दिए, लेकिन आका करीम ने एक ऐसा अमल किया और कयामत तक के मुसलमानों को यह दर्स दे दिया कि गैर से मदद मांग सकते हो जबकि वो मकबूल बारगाह हो, क्योंकि तुम्हारे नबी ने दुआ की इल्तिजाएं करवाई। अवैस करनी का नाम सुना है? हजरत अवैस करनी सहाबी भी नहीं है, लेकिन अवैस करनी के पास किसे भेजा जा रहा है? सहाबा को भेजा जा रहा है। कोई आम सहाबा को नहीं, हजरत उमर फारूक को भेजा जा रहा है, जिनके बारे में सरकार की हदीस है, उमर जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान अपना रास्ता बदल दिया करता है। उमर के जलाल का आलम यह है कि हम जाएं तो शैतान हमें रास्ते से भटका दे, उमर जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान रास्ता बदल दिया करता है। वो जलीलुल कद्र सहाबी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम, जिसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, मन कुन तो मौला हूं फहाजा अलीजुल मौला, जिसका जिसका मैं मौला हूं ये अली भी उसका मौला। ये दो जलीलुल कद्र सहाबी हैं, इनको आका करीम अपनी दस्तारे मुबारक दे रहे हैं, अपना जुब्बे मुबारक दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे ले जाकर अवैस करनी को दे देना। सिर्फ दे मत देना, बल्कि उससे मेरी उम्मत की मगफिरत के लिए दुआ कराना। मेरे अजीजों, जिस तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं, आज हम गैर के पास चले जाएं, वो भी गैर कौन है? वो अल्लाह के सालिहीन हैं कि जिनके बारे में मौलाना रूम फरमाते हैं, गुफ्ते अल्लाह बुवत गर्चे हुल्कू में अब्दुल्लाह बुवत। औलिया इकराम के मुंह से जो बात निकलती है, अगरचे हमारे देखने में एक इंसान के मुंह से बात निकल रही है, लेकिन हकीकत यह होती है कि वो कलाम इलाही उनकी जबान से बोल रहा होता है। अब ऐसे करनी के पास भेज रहे हैं और भेजकर क्या दुआ करवा रहे हैं कि मेरी उम्मत की मगफिरत के लिए दुआ करना। मेरे अजीजों, सवाल यह पैदा होता है कि वो नबी रहमत है, वो सैयदुल अंबिया है, वो सरदारे अंबिया है, मुख्तारे कुल है, वो चाहे जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने उम्मती से, सहाबी से नहीं बल्कि ताबई से उम्मत की मगफिरत की दुआ करा रहे हैं। दुआ कराकर उम्मत को दर्स दे दिया कि अगर कोई ऐसे सालिहीन तुम्हें मिल जाए उनसे दुआ करा लेना, अल्लाह उनकी दुआएं रद्द नहीं फरमाए। नारे तकबीर, मिलादुन नबी, गौसे आज़म, हिम्मतो शाने मुस्तफा, हिम्मतो शाने औलिया, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीज़ान मोहतरम, हजरत अली ने सवाल नहीं किया, हजरत उमर फारूक ने सवाल नहीं किया, या रसूल अल्लाह तोहफे तक तो बात समझ में आती है, तहाइफ आप दिया करते हैं, बहुत सारे सहाबा इकराम को आपने दिया है,
آپ نے अवैस को भी दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये सवाल नहीं किया कि उससे उम्मत की मगफिरत की दुआ क्यों करवा रहे हैं। आप तो दुआ कर दे तो अल्लाह तमाम उम्मत की मगफिरत फरमा दे, किसी गैर से दुआ की क्या जरूरत है। नहीं, वो हम जैसे नाकिस नहीं थे बल्कि वो कामिल थे, वो जान रहे थे कि गैर जो अल्लाह के मकबूल हो, अल्लाह के सालेह बंदे हो, अगर उनसे दुआ कराई जाए तो अल्लाह उनकी दुआएं कबूल फरमाया करता है। और उनसे दुआ कराना किसी उम्मती का तरीका नहीं है बल्कि उम्मतियों के नबी का तरीका है। बहरहाल तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कद अफलहा मन तज़क्का, तुम्हें कामयाबी उस वक्त तक नहीं मिल सकती है जब तक तुम अपने नफ्स की इस्लाह नहीं करोगे। मेरे अजीजों, मैं ये जिक्र कर रहा था कि नमाज बहुत अहम इबादत है, लेकिन आओ सुनो आका करीम का फरमान। आका करीम किसी जंग से वापस आते हैं मजहब इस्लाम की सरबलंदी के लिए, इस्लाम को, मजहब इस्लाम को बढ़ाने के लिए गैरों से जंग करना यह बड़ा अहम मकाम रखता है। शहीदों के मर्तबे के ताल्लुक से हदीस पाक में है, अल्लाह तबारक व तआला ने शहीदों से पूछा कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। शहीदों ने कहा कि ए मौला, ए बारी ताला, हमारी ये ख्वाहिश है कि तू मुझे दोबारा हमें जिंदा करके दुनिया में भेज, हम फिर तेरी राह में शहीद हों, फिर तेरी बारगाह में आए और तू मुझे दोबारा जिंदा करे, हम फिर तेरी राह में शहीद हों और ये सिलसिला हमेशा चलता रहे, क्योंकि शहादत में वो मजा हमने पाया है कि किसी और शय में वो मजा हमें नहीं मिला है। मेरे अजीजों, शहादत का वो मकाम है जो मैं बताने जा रहा हूं। जंग से लौट रहे हैं, उसमें कुछ शहीद भी हुए होंगे, कोई गाजी भी होगा जो जिंदा लौट के आया होगा, लेकिन आका करीम जब सहाबा इकराम जुदा होने लगे, अपने घरों की तरफ जाने लगे, तो आका करीम ने तमाम सहाबा इकराम को मुतवज्जा करके फरमाया, ए मेरे साथियों, अब हम जिहाद असगर से लौट आए हैं, अब हम छोटी लड़ाई से गौर करना मेरे अजीजों कि नफ्स से मुकाबला करना कितनी अजीम चीज है। आका करीम फरमा रहे हैं कि अब हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ मुतवज्जे होते हैं। ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे सहाबा, अभी हम छोटी लड़ाई में मशगूल थे, अब हमें अपने नफ्स से मुकाबला करना है, और नफ्स से मुकाबला करना ये बड़ी लड़ाई है। अजीजान मोहतरम, जब तक हम अपने नफ्स की इस्लाह नहीं करेंगे, जब तक हम अपने कल्ब की इस्लाह नहीं करेंगे, कोई खैर हमारे दामन में नहीं आ सकती है। और नफ्स की इस्लाह के लिए किसी अल्लाह वाले का दामन हमें थामना पड़ेगा, किसी बुजुर्ग के दामन से वाबस्ता होना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाह कभी हो ही नहीं सकती है जब तक हमारा दामन किसी रहबर और किसी मुर्शिद की रहबरी से खाली होगा। अब मेरे अजीजों, मैं अपनी यही से बात को दूसरी आयत करीमा से जोड़ना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तस्किया का मतलब आपने समझ लिया कि बगैर कल्ब की सफाई के हमें कभी भी कामयाबी और कोई खैर नहीं मिल सकती। और कल्ब की सफाई कैसे होगी? वो किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठने से होगी, किसी मुर्शिद कामिल की रहनुमाई में होगी। उसके अलावा कल्ब की इस्लाह का कोई तरीका नहीं है। मेरे अजीजों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह की जानिब वसीला तलाश करो। अल्लाह क्या फरमा रहा है? ऐ ईमान वालों, वब्तगू इलैहिल वसीला। मैं किसी और किताब से नहीं, लारैब किताब से पढ़कर सुना रहा हूं, जिसका इनकार कोई नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, अल्लाह क्या फरमा रहा है? वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की जानिब वसीला तलाश करो, अल्लाह तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता तलाश करो। और तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि वो वसीला मुर्शिद कामिल है, जिसकी रहनुमाई में बंदा मखलूक होकर खालिक तक पहुंच जाया करता है। अब मैं जिस नफीस बात की तरफ आपका इशारा करना चाहता हूं उसको सुने। आज वो लोग भी हैं जो इसका इनकार करते हैं, जो कहते हैं वसीले की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो आज उनके इमाम क्या कहते हैं। इस्माइल दहलवी का नाम हर किसी ने सुन रखा होगा। मेरे अजीजों, मैं सिर्फ उन गर्द को हटाने की कोशिश कर रहा हूं जो गर्द आज हमारे ऊपर डाल दी गई है। उस पर्दे को चाक करने की कोशिश कर रहा हूं
जो पर्दा आज हमारे दरमियान डाल दिया गया है। आज से 1-2 नस्ल पहले जितने थे सब औलिया इकराम के दीवाने थे, सब औलिया इकराम के चाहने वाले थे। कोई किसी से मंसूब था, कोई किसी निस्बत पर नाज करता था, लेकिन ऐसी वबा चली कि हर किसी ने अपने ही बाप दादा पर कुफ्र और शिर्क का फतवा देना शुरू कर दिया। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि हम जिस तरीके पर अमल कर रहे हैं वो हमारे बाप दादा का तरीका नहीं है, बल्कि अल्लाह का बताया हुआ तरीका है। मेरे अजीजों सुनो, इस आयत के तहत या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला के तहत इस्माइल दहलवी अपनी किताब सिराते मुस्तकीम पे क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि सालिकाने राहे हकीकत, यानी ये जो अरबाब तसव्वुफ हैं, ये जो औलिया कामिलीन हैं, ये जो सालिहीन हैं, जिन्हें हम वली कहते हैं, जिसका तर्जुमा दोस्त भी होता है, जिसका तर्जुमा साथी भी होता है, मेरे अजीजों उन औलिया के बारे में कहते हैं कि सालिकाने राहे हकीकत, यानी ये जो अल्लाह वाले हैं, वसीले से मिराद मुर्शिद लिया है। वसीले से मुराद क्या लिया है? मुर्शिद लिया है, जिसे हम अपनी जबान में पीर भी कहते हैं, हादी भी कहते हैं, रहबर भी कहते हैं। मेरे अजीजों सुनते चलो, ये मैं उसकी बात कर रहा हूं, उस शख्सियत की बात कर रहा हूं जिसके मानने वाले सबसे ज्यादा औलिया इकराम के शान में नाज़िबा बात करते हैं। मैं बारहा कहता हूं, मैं इख्तिलाफी बात करने का कायल नहीं हूं, लेकिन जो पर्दे तुम्हारे दिलों पर पड़े हैं मैं उसे हटाने की कोशिश करना चाहता हूं। मेरे अजीजों, मैं अपने घर की कोई किताब नहीं पढ़ रहा, मैं कुरान पढ़ रहा। जो लोग इनकार कर रहे हैं उनकी किताब से आपको सुना रहा हूं। मेरे अजीजों सुन लो, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह शायद हिदायत दे दे। इस्माइल दहलवी क्या लिखते हैं? वो कहते हैं सालिकाने राहे हकीकत, यानी ये जो अरबाब तसव्वुफ हैं, अल्लाह ने जो कुरान में लफ्ज़ वसीले का जिक्र किया है उससे मुराद मुर्शिद कामिल है। मेरे अजीजों, बात अभी इसी पर खत्म नहीं होती, उससे हैरतनाक बात तो आगे आती है कि वो बात जब हम करते हैं तो हम पर कुफ्र और शिर्क का फतवा लगता है। मेरे अजीजों, मेरा एक सवाल है कि हम करें तो कुफ्र और शिर्क, तुम्हारा इमाम करे तो उसे किस जुमरे में रखना चाहोगे? मेरे अजीजों देखो क्या कहते हैं, बस हकीकी कामयाबी और कामरानी हासिल करने के लिए, हकीकी कामयाबी क्या है? अल्लाह का इरफान हासिल करना, अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनना, अल्लाह की बारगाह तक पहुंचना, यही हकीकी कामयाबी है, यही हकीकी कामयाबी है। अल्लाह क्या फरमाता है? हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे वही कामयाब है, जो अल्लाह का इरफान हासिल कर ले वही कामयाब है, जो अल्लाह को पहचान ले वही कामयाब है। इस्माइल दहलवी साहब लिखते हैं कि बस हकीकी कामयाबी और कामरानी हासिल करने के लिए मुजाहिदा और रियाजत से पहले मुर्शिद कामिल का होना जरूरी है। मेरे अजीजों, हम यही बात जब करते हैं तो हम पर कुफ्र और शिर्क का फतवा लगता है। यहां क्या कहा जा रहा है? मुजाहिदा और रियाजत के लिए नहीं, मुजाहिदा और रियाजत के बाद नहीं, बल्कि मुजाहिदा और रियाजत, उसको मैं और आसान कर दूं, इबादत करने से पहले मुर्शिद कामिल की जरूरत है, जो हमें आकर बताए कि सही तरीके से इबादत कैसे की जाती है। इसलिए मेरे अजीजों, इस चीज को देखो, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह की बारगाह के लिए वसीले तलाश करो, जो तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा सके उसका वसीला तलाश करो। हमने औलिया का दामन थाम लिया, क्योंकि यह अल्लाह तबारक व तआला की निशानियां है। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर चलने वाले हैं। और मैं एक बात कहकर अपनी बात ना खत्म कर दूं, इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह इन औलिया इकराम के बारे में क्या कहते हैं? वो गजाली जिसको हर मकतबे फिक्र का इंसान मानता है, हर मकतबे फिक्र का आलिम मानता है, वो गजाली कहते हैं कि अगर दुनिया के अतिब्बा, दुनिया के माहिरीन इकट्ठा हो जाए, तमाम दानिशमंद लोग इकट्ठा हो जाए, तमाम अक्लमंद लोग इकट्ठा हो जाए और इकट्ठा होकर ये कोशिश करें कि हम औलिया इकराम के तरीके को बदल कर कोई और बेहतर तरीका ले आए, तो ये मुमकिन ही नहीं। ये कौन कह रहा है? ये आज का कोई आलिम नहीं कह रहा है, ये 10 सदी पहले का एक आलिम कह रहा है, 400-500 सदी क्या कहते हैं हिजरी का आलिम कह रहा है कि अगर दुनिया के तमाम अक्लमंद दानिश माहिर इकट्ठा होकर
کوئی بہترین نظام لانا چاہیں اولیاء کرام کے طریقے کے علاوہ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے سوال کیا کہ اے غزالی دورہ، اے غزالی زماں، اے امام غزالی، آپ اتنی بڑی بات کیسے رہے ہیں؟ آپ اتنی بڑی بات کیسے کہہ دے رہے ہیں کہ تمام لوگ اکٹھا ہو کر اس سے بہتر طریقہ نہیں لا سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، قربان جاؤ امام غزالی پر، کتنی بہترین فکر پیش کی ہے، کتنی بہترین تعلیم دی ہے۔ وہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ تمام لوگ مل کر اولیاء کرام سے بہتر طریقہ اس لیے نہیں لا سکتے کیونکہ یہ اولیاء کی جماعت ہے جو ڈائریکٹ بارگاہ رسالت سے فیض حاصل کرتی ہے، جو ڈائریکٹ بارگاہ خداوندی سے اکتساب فیض کرتی ہے، اور جو جماعت، جو لوگ ڈائریکٹ بارگاہ رسالت سے اکتساب فیض کرتے ہو، ان سے بہتر کوئی نظام لایا ہی نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے میرے عزیزوں، ان اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ قرآن جڑنے کے لیے کہتا ہے، حدیث جڑنے کے لیے کہتی ہے، ہمارے اکابرین بتاتے ہیں کہ اگر ہماری تقدیریں سوری ہیں تو ان اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد سوری ہیں۔ میرے عزیزوں، ہماری کتابیں ان چیزوں سے بھری پڑی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ نے تعلیم دی ہے، جو آقا کریم نے تعلیم دی ہے، سب سے پہلے ہمیں اس تعلیم پر عمل کرنا ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ تمام تعلیم کو سن لے کہ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے، تبھی ہم حقیقی اعتبار سے کامیاب ہو سکیں گے۔ اور نفس کے اصلاح کے لیے ہمیں مرشد کامل، رہبر کامل، ہادی کامل کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم کسی مرشد، کسی رہبر، کسی ہادی کے دامن سے وابستہ نہیں ہوں گے، ہم کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ہماری کبھی بھی رسائی اللہ کی بارگاہ تک نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر تمہارے دل میں یہ شوق ہے کہ میری بھی رسائی خدا کی بارگاہ تک ہو جائے تو ان اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ ان کے فیض نظر سے، ان کے فیضان کرم سے اللہ تمہیں بھی اپنا مقبول بارگاہ بنا لے گا۔ علامہ اقبال کے شعر پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ دیکھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ رب کریم سے دعا ہے کہنے سننے میں کچھ خطا ہوئی ہو مولا اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔